وعلیکم السلام جی. خیریت سے ہوئے صاحب؟ جی اللہ کا جی شکر. آپ حضرت، بتائیں. میں آپ کو انسٹاگرام پہ دیکھتا رہتا ہوں اور کافی ٹائم جی سے مطلب آپ سے بات کرنے کا مطلب ارادہ تھا، اور مجھے نمبر نہیں مل پا رہا تھا. کسی حساب سے نمبر لیا میں نے آپ کا. اور اچھا، کہاں ہاں، رہتے ہیں آپ؟ میں بریلی شریف میں رہتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی جی جی. تو حضرت یہ آپ کو تو بہت مرید ہے نا؟ نہیں مرید نہیں ہے. اور مطلب آپ بیعت نہیں کرتے لوگوں سے؟ نہیں بیٹ نہیں کرتا ہوں. ابھی اس قابل کہاں ہے بیٹ کریں لوگوں کو. نہیں، میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں ویڈیو میں، اور کافی لوگ آپ سے آ کے بیعت کر رہے ہیں یا ہاتھ ملا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں. اور کافی ہمارے تو ہاں ادھر کافی. مصافہ وغیرہ. جی جی جی. تو یہ مطلب آپ بیعت نہیں کرتے کسی کو؟ نہیں آپ بیٹ نہیں ابھی کہاں اس قابل میں. آپ سید ہیں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بس تھوڑا سا میرا آپ سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا. کافی ٹائم سے آپ کو مطلب بڑے مشکل سے نمبر ملا آپ سے. 5 منٹ بس ایسے ہی تھوڑا سا بات کر لو، تھوڑا سا اچھا لگے گا. جی جی بالکل. جی جی. کہاں تو سے لیا آپ نے نمبر؟ بس مجھے واٹس ایپ سے میں نے ایسی بات چل رہی تھی، تو ویڈیو چل رہی تھی، تو اس پہ کسی صاحب نے کہا میرے پاس نمبر ہے، تو انہوں نے مجھے نمبر دے دیا آپ کا. اچھا ہاں. اچھا. جی آپ سید ہیں، تو سلسلہ کیا آپ کا مطلب؟ سلسلہ ہمارا اشرفی سلسلہ ہے کچھ شریف. اچھا اچھا. ہاشمی میاں جو ہیں؟ جی ہاشمی میاں ہیں، مدنی میاں ہیں، اچھا اچھا اور قائد ملت ہیں محمود میاں. اچھا اچھا. تو ابھی آپ بیعت نہیں کر رہے جی لوگوں آپ سے؟ کا ابھی نہیں کر رہے آپ بیعت لوگوں سے؟ میں سمجھا کہ بیعت کر رہے دیکھیں، کیونکہ آپ کی ویڈیو کال نہیں آتی ہیں تو لوگ آپ کے ہاتھ میں. نہیں. اچھا اچھا. تو ابھی وقت لگے گا آپ کو. ہاں وہ سید ہونے کی وجہ سے سن لیتے ہیں لوگ. اچھا. مگر تو پھر بھی اچھا تو سید یعنی آپ حضرت علی یعنی مطلب کیا سلسلہ میں؟ تھوڑا سا مجھے سمجھاؤ آپ، کیونکہ مجھے اتنا معلومات نہیں ہے. سلسلہ ہمارا شجرا. شجرہ نسب. شجرہ جو ہے ہمارا امام حسن مصنع امام حسن کے جو بیٹے ہیں وہاں تک پہنچتا ہے. اچھا اچھا. تو آپ کے والد بھی سید تھے کیا ہے؟ جی والد ہے آپ کے؟ جب والد سید ہیں جی والد ہیں. جب والد سید ہیں تبھی تو ہم تو بھی سید ہیں. والد صاحب بھی آپ کے ماشاء اللہ پیر ہوں گے، مطلب وہ بھی مرید لوگوں سے کرے ہوئے ہیں؟ نہیں وہ تو مرید وغیرہ نہیں کرتے. وہ تو مطلب عالم نہیں ہے، ویسے ہی کام وغیرہ کرتے ہیں. اچھا اچھا. تو مطلب جیسے آپ سید جو بنے، ہاں مطلب آپ جو مطلب ہے، تو وہ مطلب تھوڑا سمجھ نہیں چاہ رہا تھا سسٹم، مجھے پتہ نہیں کہ سیدوں کا سسٹم کیا ہوتا ہے، کیا کس طریقے سے سید ہوتے ہیں. یعنی آپ جیسے آپ کے نہیں کس والد طریقے سید ہے، تو وہ پیر نہیں ہے؟ نہیں وہ چیز نہیں ہے. اور آپ کے دادا صاحب ہاں وہ تھے. وہ تھے. تو یہ سید جی مطلب سید سے کیا مطلب ہے؟ سید سے کیا ہوتا؟ سید جو ہے برادری ہے، یہ نبی کی آل ہے. یہ نبی کی آل چلی نا. امام حسن امام حسین کی اولادیں جو ہیں وہ سید ہیں. اب ان سے جو نسل آگے بڑھتی رہی اس طریقے سے آتی رہی آگے بڑھتی رہی، تو وہ انہیں کی آل و اولاد چلی آ رہی ہے، وہ سید ہیں. اچھا. جو حضرت حسن حسین کی اولادیں ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے؟ ہاں جی. اچھا اچھا. تو یہ کیا نام ہے، مطلب کوئی بھی ہو، وہ چاہے وہ پیر ہو، مطلب کچھ بھی ہو، وہ سید ہی ہوگا، یعنی سید مراد برادری ہے یہ؟ ہر پیر سید نہیں ہوتا. اچھا. تو یہ جو شیعہ لوگ اب ہیں، یہ بھی مان تو لو اپنے آپ کو، جو شیعہ ہوتے ہیں وہ بھی تو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں؟ وہ تو الگ ہے ان کا معاملہ. ان سے تو کہنے کیا ہے، وہ تو اپنے کیا نسبت سے لگا لیتے ہیں وہ لوگ. ہاں، میں ویسے وہی نہیں. تو سوچ رہا ہوں. ہمارے اہل سنت میں بھی سید ہیں، اور جو سارے کے سارے شیعہ جی وہ بھی سب سید ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میرے کہ یہ شیعہ سید نہیں کیسے ہوگا؟ سارے نہیں. وہ تو ویسے ہی لگاتے ہیں، نسبتاً لگاتے ہیں وہ. اچھا اچھا. تو حضرت آپ ہاں باقی صحابوں کو مانتے ہیں آپ؟ جیسے حضرت سب کو ابوبکر مانتے ہیں. صدیق، سب حضرت ہمارے عمر، حضرت عثمان کو مانتے ہیں آپ؟ سب کو بالکل تو سب ان ہمارے جیسے ہیں. ہم کو ان جیسے کے آپ قدموں کی دھول بھی نہیں ہے. جی جی، جیسے آپ سید ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں آپ، ہے نا؟ تو جی ابو بکر، عمر، عثمان، جی باقی صحابہ کی جو اولادیں ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ کہاں پر ہوتی ہیں؟ وہ ان کی اولادیں نہیں تھی کیا؟ آ رہے ہوں. ہیں؟ ہاں جی. یہ باقی اظہری صاحب ہیں. جی. مفتی سلمان اظہری صاحب ہیں، ہاں. وہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولادوں میں سے ہیں. اچھا 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 جی کافی صحابہ کا نسب آگے بڑھتا رہا اور آج بھی ان کی اچھا. اولادیں زندہ ہیں. تو کچھ صحابہ کا نسب آگے نہیں چلا. یہ جیسے ہمارے غوث پاک ہیں، اور جیسے خواجہ صاحب ہیں، اور جیسے باقی وہ ہے پیر وغیرہ، تو یہ بھی تو سب سید تھے؟
हाँ ये भी सब सैयद थे, हाँ इन्हीं की तो औलादें चली आ रही हैं आज भी गौसे आजम की औलाद। अच्छा, तो देखनी है तो फतवा शरीफ अबू में बकर जाकर के सिद्दीक देखो। अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान की औलाद है, उनके मज़ारात कहाँ हैं? वो सैयद नहीं है, उनको सैयद नहीं बोलते हम लोग। नहीं, उन्हें सैयद नहीं कह सकते हज़रत अबू बकर सिद्दीक की औलादों को, और बाकी जितने भी सहाबा मतलब हैं। तो ये उनके खास जो तो है उनके ये मज़ार तो अजमत होंगे। खाली, हाँ मज़ारात होंगे, मदीने शरीफ में हैं, जन्नतुल बकी में हैं। अच्छा, इंडिया में नहीं आए वो इधर लोग, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आए। नहीं, इंडिया नहीं, इधर नहीं आए वो लोग। उनकी अच्छा, औलादें आई हूँ मैं नहीं कह सकता, मगर क्या नाम है, वो लोग नहीं आए थे। अगर तुम मतलब हज़रत सिद्दीक अकबर की, मैं उनकी औलादों की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे हजरत हसन हुसैन तो मक्का और मदीना के थे ना, वो इंडिया के तो नहीं थे ना। जी तो वो उनकी इंडिया के औलाद। नहीं थे, मगर जब क्या नाम है करबला का वाक़या पेश आया, तो हम्म, उसके बाद पूरा कुंबत वहीं पर गया। एक अच्छा, इमाम हसन के बेटे बचे थे जो मदीने क्या नाम है वापस चले गए थे, और एक इमाम हुसैन के बेटे जो बीमार थे करबला में शहीद नहीं तो हुए थे, दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जी जी जी। 2 बेटे बचे थे। तो अब उन्हीं से नस्ल अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बरकत फरमाई नबी की औलाद में, कि जब औलाद फैली तो पूरी दुनिया में फैलती चले गई। आज जगह जगह सैयद मिलते हैं, मगर शिया तो भाई इनसे तो हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये तो जैसे खाली निस्बत जैसे लगा लेते हैं कि हजरत हसन हुसैन नकवी के। सैयद और अलवी सैयद। हाँ हाँ, जैसे हजरत हसन हुसैन के दो बेटे बचे हैं, तो उनसे इतनी नस्लें फैली हैं। जी तो अबू बकर, उमर, उस्मान की नस्लें नहीं फैली? उनकी और भी फैली होंगी, होंगी यानी। जरूर आज भी जिंदा होंगी, मगर हाँ होंगी, तो वो होंगी क्या सैयद हैं आज भी। उनको सैयद क्यों नहीं कहते? ये जरा ये जानना था मुझे। उनको सैयद इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो सैयदा फातिमा के पेट से पैदा नहीं है, जो सैयदा फातिमा के पेट से औलादे पैदा हुई वो सैयद हैं बस। अच्छा अच्छा, मतलब ये सैयद से क्या, जी सैयद के मायने क्या होते हैं? सैयद का माना होता है सरदार का, और भी काफी माने हैं, मगर फिलहाल तो सरदार का होता है। तो मैं वही सोच रहा था। तो ये हजरत अबू बकर, उमर की औलाद सरदार नहीं थी? सरदार थी, मगर सैयद तो नहीं थी ना। तो वही तो, सैयद के मायने सरदार है ना। सैयद का माना सरदार है, अब तो ऐसे कोई कौम का सरदार हो तो उसे भी सैयद कहने लगेंगे लोग। कोई नहीं अब तो क्या नाम है वजीर आजम है, उसे वो भी सरदार है हिंदुस्तान का, तो उसे भी सैयद कहने लगेंगे ऐसे तो लोग। नहीं तो फिर आपने तो कहा ना कि सैयद के मायने सरदार होते हैं। तो मैं तो सोच रहा हाँ कि सैयद का ये माना हजरत सरदार अबू होता है। बकर, उमर की औलाद है, ये जो नस्लें हैं, ये सऊदी अरब में तो होंगी ना। हाँ होंगी, जरूर होंगी, मगर जो फजीलत अली के बेटों को मिली वो क्या नाम है हर किसी के बेटों को नहीं मिली। अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं, मगर उनके बेटे जो हैं नबी की आल से अफजल नहीं है। अच्छा, तो जी अफजल तो मतलब क्या होता है कि अगर अगर नबी का बेटा हो या उनके बेटे हो या उनकी औलाद हो तो वो अफजल हो जाती हैं। यानी निस्बत जो है बिल्कुल अफजल होंगी। औलाद के होने से निस्बत होती है। यानी जैसे जी उनके नबी अंदर, का बेटे के अंदर बाप का खून होता है नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल। बेटे के तो अंदर जैसे बाप का खून होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे, तो वो तो काफिर थे, वो तो मर गए थे काफिर, तो उनके बेटे होने से उनको निस्बत क्यों नहीं मिली? अब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, अल्लाह ने उनकी किस्मत में नहीं लिखा इस्लाम, तो तो आपने दुआ भी नहीं कर। इस्लाम कबूल करने की वजह से निस्बत है ना उनकी। जी तो हजरत अबू बकर के बेटे भी तो इस्लाम कबूल करे थे। हाँ बिल्कुल करा, हमका मना तो करते फिर हैं। नहीं, अभी जैसा आपने कहा ना कि इस्लाम कबूल करने की वजह से निस्बत है, तो ऐसे तो इनकी औलाद ने निस्बत कबूल करी, जी तो ये निस्बत फिर इनकी निस्बत कम क्यों है उनके उनके मुकाबले में? अब भाई क्या कहना चाह रहे हो तुम, मेरी समझ से बाहर है आपकी नहीं नहीं, बात। मैं थोड़े से मैं मालूम है, जैसे जैसे मैं देखता हूँ ना कि सारे जो सैयद हैं वो सब हजरत हसन हुसैन की जी औलादों से बोलते हैं। वो कहते हैं तो जैसे अभी आपने कहा कि निस्बत से आदमी जो है ना, मतलब वो उसकी वैल्यू नहीं है उसकी जब तक वो इस्लाम कबूल ना करे। तो इस्लाम कबूल करने की वजह से, जी हाँ, तो आप अपने आप को अब सैयद या सरदार कहलाते हैं, तो इस्लाम कबूल करने की वजह से कहलाते हैं या हजरत हसन हुसैन की औलादों की वजह से कहलाते हैं आप? इमाम हसन हुसैन की औलाद होने की वजह से सैयद कहलाते हैं। इस्लाम कबूल, इस्लाम तो एक अलग चीज हो गई। अच्छा। इस्लाम कबूल करेगा तभी तो मोमिन बनेगा। आप मुसलमान के घर में पैदा हुए तो मुसलमान हो गए, कोई हिंदू हाँ, के घर पैदा हुआ तो वो हिंदू हो गया। हिंदू हो गया। मुसलमान को अल्लाह ने बना करके भेजा। हर हाँ, बच्चा इस दुनिया में जो भी पैदा होता है, चाहे मुसलमान के घर हो चाहे हिंदू के घर हो, वो फितरत इस्लाम से पैदा होता है। जी जी फिर जी। जब वो बड़ा होता है तो जैसा अपने वालिदैन को देखता है वैसी हो जाता नहीं, है, वैसे रंगढंग में ढल जाता है वो। जैसे हजरत मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जो है, मिसाल के तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ
کہ آپ کس بنا پر اپنے آپ کو مطلب اونچا سمجھتے ہیں دوسرے لوگوں سے، یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں. نہیں، ہم اونچا کسی سے نہیں سمجھتے. ہم تو بھائی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس سے افضل ہیں یا ہم اس سے افضل ہیں یا ہم اس سے افضل ہیں، مگر ہمارا نسب سب سے افضل ہے. تو میں وہی تو کہا، نسب آپ کا مسلمان ہونے کی وجہ سے افضل ہے نا، یا حضرت علی خاندان کی وجہ سے افضل ہے؟ مسلمان کس کی وجہ سے؟ حضرت حسن حسین کی اولادوں کی وجہ سے افضل ہے. امام حسن حسین کی اولادوں کی وجہ سے افضل ہے. اگر وہ کربلا میں سر نہ کٹاتے تو آج تم بھی نہ مسلمان ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ کوئی ہوتا. دین کی بات ہی نہ رہتا، دین ہے زیادہ. وہ نہیں، میں یہ پوچھنے جا رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا یہ سمجھنے جا رہا ہوں کہ اگر نبی کی اولاد نبی نہیں ہو سکتی، نبی کی اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی، تو حضرت حسن حسین کی اولادیں جو ہیں وہ ولی یا درجے میں اولا کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں، وہی تو تھوڑا سا سمجھنے جا رہا تھا میں نے کہ آپ کو زیادہ معلومات ہوگی. آپ جیسے بہت سے نبی ہیں، ان کی اولادیں مسلمان نہیں تھی، بیوی مسلمان نہیں تھی. اب جو میری بات سنو آپ جی، اب جو خاندان سادات میں پیدا ہوگا تو وہ کافر کیسے ہوگا؟ کیوں کافر کیوں نہیں ہوگا؟ خاندان سادات میں پیدا ہوگا، کافر کیوں نہیں ہوگا جب کافر پیدا؟ یہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کیوں ہوگا کافر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کافر تھے نہیں تھے کہ ابو جہل، ابو لہب اور وغیرہ، ابو طالب وغیرہ، وہ کافر تھے نہیں تھے؟ ابو طالب کافر نہیں تھے. ہم کافر نہیں مانتے، کافر نہ کہیں آپ. نہیں، ان کے تو بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت وہ تو بخاری شریف میں دو تین حدیثیں ہیں. نہیں، ہم بھی حدیث پیش کریں گے. مومن نہیں، بخاری افضل ہے نا بعد القرآن، تو ہم بخاری کی بات کو پہلے مانیں گے، باقی بات کو ہم بعد میں مانیں گے. چلو ان کو چھوڑا. خیر، بخاری میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آپ کو جب ان کا انتقال ہو رہا تھا ابو طالب کا، تو کان میں کہا ہے اے چچا کلمہ پڑھ لو، میں جو ہوں آپ کی گواہی اللہ کے پاس دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں ہوا کہیں میں مر جاؤں، لوگ کہیں کہ ابو طالب اپنے خاندان کو اس کو چھوڑ کے چلا گیا، تو وہ اسی پہ کفر پہ مرے تھے. تو اور پھر ان کے بارے میں ایک حدیث اور ہے، ایک حدیث اور ہے ان کے بارے میں، جب ان کو دیکھا گیا تو وہ جہنم کے سب سے زیادہ مطلب کم عذاب میں تھے اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے، یعنی تھے عذاب میں. ایسی حدیثیں ان کے بارے میں ہیں. تو میرا مقصد یہ اللہ رسول کو تو یہ اختیار ہے کہ قبر سے اٹھا کر کے بھی کلمہ پڑھا دیں گے. نہیں تو پھر انہوں نے ابو لہب کو، ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ ابو لہب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ ابو جہل کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ بھائی مان لو اب آپ ہیں، آپ مسلمان ہیں، نہیں ہیں آپ مسلمان ہیں، آپ سے کوئی کہے کہ کلمہ پڑھو، جب آپ مسلمان ہو تو کلمہ اس کو دکھانے کی تھوڑی پڑھو گے. آپ تو مسلمان تھے تو کلمہ پڑھتے کیوں؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ اللہ کے رسول تو اٹھا کر قبر سے اٹھا کر کلمہ پڑھا سکتے ہیں، تو وہ تو اپنے زندہ کو کلمہ نہیں پڑھا سکے. بالکل، اپنے چچاؤں کو، ابو جہل کو، ابو طالب کو، ابو لہب کو، اور یہ ان کو کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس بات سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں نہیں پڑھا سکے؟ نہیں، میں جیسا میں ابھی آپ نے کہا نا کہ نبی کو اتنا اختیار ہے کہ کسی کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں. باتیں تو بہت پوچھ رہے ہیں. علم حاصل کرنے کے جیسے ہوتا نا کہ ہم جیسے بہت سے لوگ غلط فہمی ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو مجھے بھی بہت ساری باتیں نہیں پتہ، تو میں تھوڑا سا اسی لیے آپ سے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو نسبت والا معاملہ ہے یا اولاد والا معاملہ، نسبت سے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اولاد والا معاملہ ہے، نسبت سے تو شے ممتاز ہوتی ہے. ہاں، تو اگر اولاد والا جو معاملہ ہے، اولاد والا معاملہ تو خیر یہ تو اولاد سے تو یہ ثابت ہوا کہ نبی کی اولاد نبی نہیں ہو سکتی، نبی کی اولاد حتیٰ کہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتی، نبی کے ماں باپ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. تو نسبت اولاد خاندان کا تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی اگر نبی کے والدین مسلمان نہیں تھے. میں آپ کی بات کا ہی کہہ رہا تھا، جیسے آپ جو مطلب سید ہیں، اس وجہ سے حضرت حسن حسین کی ان کی حسب نسب کی وجہ سے، ان کے شجرہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو، تو میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے عمل سے اونچا ہو سکتا ہے، اپنے حسب نسب سے نہیں، یعنی وہ اپنے باپ سے اسی کوئی ویلی نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر نبی کی، یہ بتائیں کہ آپ سنی ہیں نہیں ہیں، یہ بتائیں. میں تو صاحب کینیڈا میں سننی ہوں. چلو ماشاء اللہ، مل کے کبھی کوئی. ہاں، تو میں تھوڑا سا یہ تھا، میں تھوڑا سا آپ سے بات کر لوں تو یہ تھوڑی سی میری بات سن لیں آپ، کہ میں نے جو اب تک جو تحقیق کری ہے وہ آپ سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اولاد کا ہونا اور وہ نیک ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ماں باپ ہو وہ ضروری نہیں ہے. انسان نبی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. نبی کی اگر خصوصیت نبی کی خصوصیت نبی کے لیے ہے. اگر نبی کی خصوصیت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ نہ بولتے کہ بیٹا عمل کرنا، اگر قیامت کے دن تجھے اللہ نے پکڑ لیا تو تیرا باپ تجھے نہیں بچا سکے گا.
अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो तौबा करो, ये तुम्हारे हदीस ईमान का जनाजा निकलेगा, मातम करो अपनी ये हदीस मातम करो। हदीस है साहब, ये मैं आपसे नहीं कर रहा, क्या हदीस लगा रखा है? हदीस है ये, तो हदीस को नहीं मानते आप? ये हदीस है ये? हाँ, बुखारी की ये हदीस हदीस है, कह रहे हो तुम इसे? बुखारी की हदीस है। तो ये किस लिए थी? ये इसलिए थी कि तालीम उम्मत के लिए कहा आपने। हाँ, तो उम्मत की तालीम के लिए कहा आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मत के लिए भी कहा, तालीम के लिए कहा, उम्मत के लिए भी कहा, बेटी के लिए भी कहा, सबके लिए कहा। उन्होंने एक नसीहत करी पूरी कौम को, सबको कि साहब आप लोग अमल करना। जन्नती औरतों की सरदार बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनके बेटे जवाना में जन्नत के सरदार हैं। हम मानते, लेकिन उन्होंने ये कहा, एक सिस्टम बताया कि जो इंसान है, जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, ईमान का तोता उड़ जाएगा आपके। मैं आपसे इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि आप जो है थोड़ा सा ये जो गलत फहमी का शिकार है कि आप हजरत अली की उससे है तो आपको ऊंचा दर्जा रखाते हैं, ये गलत फहमी है आपकी बस थोड़ी सी। नहीं, हम नहीं लगाते ऊंचा दर्जा। तो फिर आप बताइए, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आप मतलब पीर बने बैठे हुए हैं, लोग आपके आगे हाथ चूम रहा है और आपको सज्जे कर रहा है और आपके साथ आपको क्या हसद है इस बात से? इसलिए मैं थोड़ी सी आपकी गलत फहमी निकालना चाह रहा था। ये आपकी जो सोच है गलत है, ये सोच गलत है। आप एक आम इंसान है, चाहे वो आप अब हजरत हसन की औलाद में से हो या किसी की भी औलाद में से हो, आप अपने अमल से ऊंचे हो सकते हैं, अपने हसन नसब से ऊंचे नहीं हो सकते। तो अमल के हमारे अच्छे नहीं हैं? आपके अमल तो आपने क्या गलत खेल देखा? मैं आपकी बात, मैं तो अमल की बात, मैंने अभी आपका अमल नहीं देखा। आपने अपनी निस्बत बता रहे, निस्बत से ऊंचा बताया आपने, तो ये चीज मैं बता रहा कि निस्बत से कोई ऊंचा नीचे नहीं होता, अमल से होता। अगर नबी के चचा एक ईमान लाए तो उनका आज हम उनके चचाओं का एहतराम करते हैं, हजरत हमजा का सैयदुल शोहदा। अबू जहल ईमान लेके नहीं आया, आज हम अबू जहल को बुरा भला कहते हैं, तो नबी की निस्बत किसी काम में नहीं आई उनके। अरे खुदा, ईमान लाए तो उनका दर्जा बुलंद हुआ हजरत हमजा का, ईमान नहीं लाया अबू जहल जहन्नुम ही हो गया। हो निस्बत से क्या फायदा हुआ? निस्बत से कुछ भी नहीं होता। ये इस्लाम का एक उसूल है कि अमल से आदमी, और कयामत के दिन भी अल्लाह ताला किसी को काला गोरा मोटा पतला और अमीर आदमी नहीं देगा, उसके अमल से नापत तोला जाएगा, उसे उसकी निस्बत से नहीं तोला जाएगा। अगर निस्बत से तोला जाएगा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के माँ बाप है और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है, और पता नहीं कितने नबियों के जब वालिदैन काफिर थे, किसी की बीवी काफिर थी, किसी की औलाद काफिर थी, किसी का कुछ काफिर था। अरे तौबा करो भाई, तौबा करो। नहीं तो मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, नबी की वालिदैन को काफिर बना रहे हो किसी के भी। तो मैंने कौन सा नबी के वालिदैन? आप जो है तौबा करें इस बात से, हजरत इब्राहिम के वालिद काफिर नहीं थे, तौबा करें। तो कौन थे? मुसलमान थे? उनके चचा बेचा करते थे मूर्ति वगैरह जो बताते, तो वो मुसलमान थे। वो नबी के आने से पहले कोई मुसलमान हो सकता? अल्लाह अपने नबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले कोई मुसलमान था दुनिया में? क्यों नहीं थे? वो नबी के उम्मती थे, वो मुसलमान नहीं थे? कौन थे बताइए मुझे। अबू जहल भी तो नबी, उनका अबू जहल वगैरह जो थे ये दीन इब्राहिमी पर थे ना थे। अबू जहल दीन इब्राहिमी पर, अबू जहल नहीं था। नबी के दादा परदादा ये सब दीन इब्राहिमी पे था। तो दीन इब्राहिमी के मानने वाले इब्राहिमी पर थे। तो दीन इब्राहिमी मानने वाले तो मुशरिक थे ना सब? मुसलमान नहीं थे वो? आप मुसलमान नहीं कहेंगे? मुशरिक को मुसलमान समझते हैं आप? जी, मुशरिक जो होता है वो मुसलमान होता है, मतलब मुसलमान को नहीं कह रहा मैं। और तो जो दीन इब्राहिमी पर थे वो सब मुशरिक थे। वो दीन इब्राहिमी का नाम लेते थे लेकिन शिरक करते, बुतों की पूजा करते थे, वो फला क्या वो बुतों की पूजा करते थे। अलग हो गई तो हाँ, तो मुशरिक तो होगा ना वो, अलग हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले तो कोई दुनिया में मुसलमान था ही नहीं। उस टाइम में सबके सब काफिर थे, मुशरिक थे, मुनाफिक थे, लेकिन मुसलमान नहीं थे। नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान नहीं थे? वो मुसलमान थे, मुशरिक थे वो नहीं थे? आप बताएं। मुशरिक थे वो। तौबा करो खुदा के बंदो, तौबा करो, तुम्हारे ईमान का जनाजा निकलेगा। जैसी बात कौन तुम नाम बताओ अपना। आप बताइए। मेरा नाम सलीम है। आप बताइए ना, मैं तो जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। आप बताइए, मुसलमान थे तो मुशरिक नहीं थे? वो मुसलमान थे। मुसलमान थे, नबी के दादा को काफिर कहते हो तुम? नहीं तो क्या थे? मुसलमान कैसे थे? यानी उस जमाने में कोई मुसलमान था? अगर नबी के दादा मुसलमान होते तो अबू जहल मुशरिक होता? अबू तालिब मुशरिक होते? मुकद्दर नहीं, तो वो उसकी वजह बताओ ना, उनकी वजह बताओ ना कि ये आपसे किसने कहा कि अबू नबी के दादा जो थे मुसलमान थे वो शिरक नहीं किया करते थे? उसकी क्या दलील है आपके पास? कोई दलील तो होगी ना। काबा की मुतवल्ली कौन थे? तो मुशरिक तो खाने काबा में हज भी, मुशरिक तो खाने काबा का तवाफ भी करते थे।
अरे खुदा के ये बंदो, जो तुम खाने पता काबा नहीं का भाई तवाफ कौन सी करने बहस में वाला, लग गए हो। खाने तुम काबा पता का नहीं तवाफ, क्या चाहते हो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जो मक्का के मुशरिकों के बारे में है ना, जो खाना काबा का तवाफ भी किया करते थे, हज भी किया करते थे, वो सब काम करते थे मुशरिक। बस अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारा करते थे। जैसे हम लोग आज हमारे यहाँ लोग पुकार रहा है गौस पाक को, ख्वाजा साहब को, या अली मदद या गौस मदद, ये मुशरिक है नहीं हाँ, है? तो या अली मदद कहना जायज है या गौस मदद कहना भी जायज है, मगर मुशरिक तुम जो हो, तुम शिर्क मुझे है, लग रहे हो ये या शिर्क हदीस हो तुम। नहीं अली की बात नहीं है, तुम गैर मुकल्लिद नहीं हो तुम। तुम गैर मुकल्लिद हो। ये बस मैं बात ये है हजरत, मैं आपकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा था कि निस्बत से कोई हाँ, मुसलमान हमारी इस्लाह करोगे तुम। आप जो तुम है हमारी अपने इस्लाह करोगे। अमल से, आपका अमल ठीक नहीं है, और आप लोगों को निस्बत लगा कि मैं सैयद हूँ। सैयद होना कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे आप सैयद होता भी कोई नहीं है। अच्छा, कयामत। जी बताइए सैयद कोई है भी नहीं, ये सब बेकार की बात है। आप कोई सैयद नहीं है, कोई सैयद क्या है? सैयद तो सरदार के मायने होते हैं। आप सरदार हैं, आपके वालिद भी सरदार, आपके दादा भी सरदार, आपके परदादा भी सरदार, सब सरदार थे। कोई सरदार एक ही तो होता है कि सारे सरदार होते हैं? तुम अपनी वालिदैन से पूछना, तुम्हारी जो है खमीर में खता लग रही है मुझे। नहीं ये आपकी आप थोड़ा सा गलत तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है आपको। नहीं, गलत नहीं, तुम नबी के वालिद को काफिर कहो और मैं तुमसे सही तरीके से तो बात मुझे करूं। तुम नबी के दादा को काफिर कहो, मैं तुमसे सही तरीके से बात करूं। नबी के वालिदैन की आपको बताऊं, अल्लाह तुम्हारे के ईमान का रसूल जनाजा निकल चुका, सल्लल्लाहु तौबा अलैहि करो, तौबा करो, वसल्लम कलमा पढ़ो दोबारा। एक मिनट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करी अल्लाह से कि मैं अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत करना चाहता हूँ और उनकी मगफिरत की दुआ करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने नबी को ये इजाज़त दी कि तुम अपनी वालिदा की कब्र पर जा सकते हो, लेकिन मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते। बताओ, मगफिरत की दुआ किसी करनी नहीं आई है? अच्छा, किसी करनी नहीं आई है? काफिर की नहीं करनी आई तो नबी के वालिदैन काफिर थे, इसे में सारे हो आप। हाँ बताओ आप बताओ ना, मैं तो आपको हदीस बता रहा हूँ। आपने कोई हदीस बताई मुझे? आप हदीस बताओ। क्या हदीस लगा रखी है तुमने? तो उल्टी सी बातें करती हो तुम, गैर मुकल्लिद हो। इसका क्या हो, मतलब कौन ये है हो क्या? तुम? इसका मतलब खुदा के बंदे, तौबा करो, तौबा आप करो। हदीसों को नहीं मानते आप? क्यों नहीं मानते? तो फिर आप जब आप तुम जो कहोगे हदीस बन जाएगी, तुम जो हदीस से कहोगे। तो आप मुझे कोई दूसरी हदीस दे, तो फिर वही तो करो। आप हदीस से छोड़ क्यों रहे हो? मैं तो बुखारी के हमारे मुसलमानों के लिए बादल कुरान बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ पढ़ी है आपने? पढ़ी तभी तो बता रहा हूँ आपको। पढ़नी आती है आपसे? पढ़िए तभी तो बता रहा हूँ आपको। आप बताइए मुझे कोई एक जो नबी के वालिदैन और नबी के दादा मुसलमान थे। चलो बताइए कोई हदीस। चलो हदीस कुरान की आयत कुछ बताइए चल मुझे आप। अच्छा, नबी के वालिदैन को आप क्या मानते हैं ये बताएं। आप बताइए आप क्या मानते हैं? मैं तो मोमिन मानता हूँ नबी के वालिदैन को। कैसे? दलील? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील दुनिया में मैं नहीं आए थे। पहले आप क्या मानते हो? एक मिनट अब आपको थोड़ा सा आपकी आसानी कर दूं, क्योंकि आप निस्बत से बैठे हुए हैं। आप इल्म से नहीं है ना, निस्बत से आप बोल रहे हैं। वो भी निस्बत भी झूठी लगा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप। आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, ना दीन है, ना आपके पास निस्बत है, ना आपके पास कुछ है। आपने सिर्फ लोगों को सैयद बताकर धोखा दे रहा है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाई, आप खुद को भी धोखा न दें और लोगों को भी धोखा न दें। आपकी क्या वैल्यू? आप कौन है? क्या करेंगे आप? सैयद हो तो क्या हुआ? तुम क्या हो? तुम ये बताओ तुम क्या हो? मैं तो सीधा साधा मुसलमान हूँ। तुम क्या हो? मैं सीधा साधा मुसलमान हूँ। मैं कोई अपनी मुसलमान हूँ। मैं निस्बत देके अपने आप को तोहफा बन जाऊँ। अभी मैं भी बोल दूँ कि मैं भी साहब सैयद हूँ, तो फिर क्या होगा? झूठ बोलने से क्या होगा? क्या होगा? कयामत के दिन तुम्हारी पकड़ होगी। आप झूठ बोलोगे तो आप झूठ बोलो। जब आपकी नजर में हजरत अबू बकर उमर, एक मिनट, हजरत अबू बकर उमर उस्मान की जो औलादे हिंदुस्तान में नहीं आई, उनके मजार नहीं बने, तुम्हारी उनके हजरत अली के औलाद के मजार बने, बस ये क्या बात हो रही? अली के गुंबद तो आज भी चमक रहे हैं, तुम्हारे जैसे बाकी लोग ऐसे बच्चों के दिलों में चुभ रहे हैं। अली की तो कब्र ही नहीं है, कोई गुंबद कहाँ चमकेगा? देखो हैं, हजरत अली की तो कब्र ही नहीं है। कहाँ है कब्र उनकी? नहीं है। कहाँ है? बताओ मुझे, बताओ कहाँ है मजार उनका? नजफ अशरफ में है, जाकर देखो। हजरत अली का मजार अशरफ करके एक भी नहीं है। इमाम हुसैन का हजरत अली कहाँ है? हजरत अली कहाँ? चलो बताइए आप मुझे, हजरत अली कहाँ है? चलो आपको तो जब आपको जिसकी निस्बत दे रहे हो तुम्हें उसका नहीं पता कि उनकी कब्र कहाँ पर है, और आप उनकी निस्बत देके बैठे हो। आपको अपने मैंने गलत बात करी? बताओ मुझे। मैंने साहब ये गलत करी है तो उसकी दलील ये है कि गलत बात तो आप भले ही आपने बात सीधी कर रहे हैं, बात सीधी कर रहे हो। नबी के वालिदैन को काफिर बता रहे हो। मैं गुनहगार भी होऊंगा और अपनी बात से रुजू भी करूँ। आप मुझे दलील दे दो कोई दलील तो पेश करो कि साहब नबी के वालिदैन मुसलमान थे, नबी के दादा मुसलमान थे, उन्होंने कलमा किसका पढ़ा था? वो तो मुझे जी। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? एक बात बताओ, एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे इस बात का जवाब दे दें, मैं समझ लूंगा आपको।
आप ये बताएं, आला हज़रत को मानते हैं आप? आला हजरत को तो क्या था, हम तो आपको ही मानते हैं, तो सबको मानते हैं, जो दुनिया में आए सबको मानते हैं, मना कैसे कर सकते हैं? इतनी बड़ी जो लोग आए सबको मानते हैं। अरे ये बताइए, मतलब कि आला हज़रत को मानते हैं, आप नहीं मानते हैं, ये बताइए। नहीं, मसलब को नहीं मानता, आला हजरत को मानता हूँ। आला हज़रत को मानते हो, मतलब को नहीं मानते, उनकी हाँ। उनकी बातों को नहीं मानते, क्या फायदा है? भाई वो जैसा आप दुनिया में आए ऐसी हालत दुनिया में आए, अब जो दुनिया में आया उसको तो मानना पड़ेगा, इनकार तो नहीं कर सकते ना हम। लेकिन मसलक तो हमारा वही है ना, जो जिस पर मसलक तो हमारा वो है ना, जिस पर सहाबा किराम चलते थे। आला हजरत भी अगर वो उस पर चलते थे तो मुसलमान थे, अगर उस पर नहीं चलते तो वो मुसलमान नहीं थे। वो भी उनका आला हजरत का मसला कहाँ से आ गया? आला हजरत का मसला कहाँ से आ गया? तौबा करो। उवे साहब आप सोच ले, आला की खेत की मूली जो मसलक लेकर आएंगे अपना वो। अरे मसलक क्या होता है? मसलक अल्लाह का रसूल का चलना है, जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताया उससे चलना है। आला की खेत की मूली। तुम भाई बेकार हो, तुम अरे मेरे भाई आप दलील पड़े, आप बताइए मुझे, आप काफिर बना दे रहे हैं मुझे, आप मसला हालत पे चला रहा है। मसला के हालत पे चलना मतलब काफिर आदमी। नबी के मसले को छोड़ के, सहाबा के मसले को छोड़ के आलत के मसले पे चलेगा, आलत के मसले पे चलेगा, मुसलमान है वो जो आलत के मसले पे नबी का मसलक है, उन्होंने का मसला। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आला हज़रत नबी का मसला लेकर अपना नाम, अपना लेबिल लगा लिया। लेबिल लगाना आया कुरान हदीस, कल तुम बोलो कुरान हदीस भी आला हज़रत हो गया फिर तो, अगर उन्होंने निस्बत दे दी तो अपनी। सब बेवकूफ है, बेवकूफ है। अरे तो आप ही तो कह रहे हो नबी का मसला आला का मसला हो गया, तो कुरान